All right, so good evening, all of you. Welcome you all to PSR Edge channel on Telegram. So, this is the second part of topic 10. And as you all know, we are doing Back to Basics quick revision series for Political Science Optional, Paper 2, Section 1. And until now, we have finished topic 1 to 9. And topic 10, first part we have finished yesterday. Today we'll start off with topic 10, part 2. पार्ट वन में हम लोगों ने रीजनलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स एंड ईयू के बारे में देखा था। आज हम आगे नाफ्ता से लेके आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है सर, प्लीज स्टार्ट करिए। Okay. NAFTA. NAFTA, North Atlantic Free Trade Agreement. NAFTA is not an example of integration at par with either EU, ASEAN or SAARC. It has been just a free trade agreement. First free trade agreement between developed and developing countries. It was proposed by H.W. Bush and implemented by Clinton administration. This shows that there was bipartisan support for NAFTA in USA. However, later on there was resentment against NAFTA. Even Obama administration wanted to review it. Trump administration took aggressive posture, called it a worst trade deal ever. USA has forced NAFTA countries to revise the terms and conditions. The main reason being US-China rivalry. After USA, Canada is the second largest trading partner of China. China has huge investments in Mexico and other Latin American countries. According to Robert D. Kaplan, USA has been ignoring the challenge to its hegemony in its own backyard. Porous border give opportunity to non-state actors to enter in USA. Reduction of tariffs give opportunity to China to enter into US market, where Mexico acts as a back channel route. Motivations for Mexico to join agreements. Source of investment from USA, access to technology, more employment in manufacturing sector, increasing exports, farm exports particularly. Incentives for USA. Cheap labor from Mexico will enhance the competitiveness of US products. It will also create jobs in Mexico and hence it will prevent legal and illegal immigration from Mexico. Incentives for Canada. A bigger market for products of Canada and a place for Canadian investment. Nature of agreement. One of the most ambitious trade agreement as it covered trade in goods, services, investment, IPR. It included labor laws and environmental standards. Impact of NAFTA. In 1993, the total intra-regional trade was $290 billion, which has gone to 1.1 trillion in 2017. Mexico was receiving US FDI around 15 billion before NAFTA, which became 100 billion after NAFTA at present. तो यहाँ तक कोई समराइज कर देगा? Anyone? सर आवाज ब्रेक हो रही है, मुझे भी ब्रेक हो रही है कि सबको ब्रेक हो रही है? अच्छा, मेरी आवाज ब्रेक हो रही है क्या? मुझे जैसे ब्रेक हो क्या रही है। और कोई कंफर्म कीजिए। आशुतोष क्रेचर, हेलो, अभी आ रही है क्या उमेश सर? हाँ हाँ आ रही है भाई, आ रही है। अच्छा, तो मतलब पहले भी आ रही थी या अभी आ रही है? थोड़ी थोड़ी कट हो रही थी, बाकी फाइन। अच्छा ठीक है, तो इसको समराइज कर सकता है कोई? कोई भी कर लो, दो दो लाइन में पैराग्राफ को बता दो समराइज करके। हेलो सर, आवाज हाँ आ आ रही रही है? है, बोलिए आप। हाँ
हाँ तो सर इन्होंने लिख रखा है नाफ्टा इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ इंटीग्रेशन एट पार विद आइदर ईयू एशियन और सार्क। मतलब ये किसी के साथ मिलके कुछ नहीं है, ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है बस। और इसमें फर्स्ट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था ये डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में, जिसको एच.डब्ल्यू. बुश ने प्रपोज करा था और इम्प्लीमेंट हुआ था क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू। फिर इन्होंने लिख रखा है सर कि दिस शोज दैट देयर वाज ए बाई पार्टीशन सपोर्ट फॉर नाफ्टा इन यूएसए। मतलब बाई पार्टीशन सपोर्ट हुआ था नाफ्टा का यूएसए में। हाउएवर लेटर ऑन देयर वाज रिजेंटमेंट, मतलब इसके खिलाफ फिर आवाज उठाई नाफ्टा के खिलाफ। और इन्होंने फिर जो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन था वो इसको रिवाइज करना चाहते थे, लेकिन जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन था उसने एग्रेसिव पोस्चर लिया और इसको सबसे गंदा एक्ट बोला, मतलब सबसे बेकार ट्रेड डील बोली। सॉरी सर। फिर इन्होंने लिखा है कि यूएस हैज फोर्स्ड नाफ्टा कंट्रीज टू रिवाइज द, मतलब वही है कि सर यूएस ने फिर ये कहा कि नाफ्टा कंट्रीज जो है ये डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में था, तो उन्होंने रिवाइज करने को कहा। फिर इसका ना मतलब मेन रीजन तो यही था, यूएस चाइना राइवलरी, क्योंकि ईयू वगैरह के इनके रिलेशंस उसके साथ में अच्छे थे, मतलब चाइना वगैरह के साथ में। फिर इन्होंने लिखा कि आफ्टर यूएसए कनाडा इज द सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ चाइना, मतलब चाइना के साथ में कनाडा सेकंड लार्जेस्ट पार्टनर है। फिर इन्होंने लिखा है चाइना हैज यूजिंग इन्वेस्टमेंट इन, चाइना ने मैक्सिको में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, मतलब जो साउथ अमेरिका वाली कंट्रीज हैं उनके साथ, जैसे वेनेजुएला, ब्राजील, इन सब के साथ में। फिर इन्होंने लिख रखा है अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट डी कापलान यूएसए हैज बीन इग्नोरिंग द चैलेंज टू इट्स हेजमनी टू इट्स बैकयार्ड। वही है सर कि मतलब उन्होंने लिख रखा है कि यूएस अपनी हेजमनी को वो नहीं करना चाहता कि कोई उसको चैलेंज वगैरह करे। फिर इन्होंने लिख रखा है पोरस बॉर्डर गिव अपॉर्चुनिटी टू नॉन स्टेट एक्टर्स टू एंटर इन यूएसए। यही है सर, नॉन स्टेट एक्टर्स यही सब होते हैं कि जैसे टेररिस्ट वगैरह, जैसे 9/11 का अटैक वगैरह हुआ था, तो इसीलिए वे एंटर हो जाते हैं यूएसए में, क्योंकि उसकी बॉर्डर अच्छी नहीं है इतनी। फिर इन्होंने लिखा है सर सेकंड पॉइंट की रिडक्शन ऑफ टैरिफ गिव्स अपॉर्चुनिटी टू चाइना टू एंटर यूएस मार्केट वेयर मैक्सिको एक्ट एज ए बैक चैनल रूट। मतलब अगर वे टैरिफ वगैरह घटाते हैं तो चाइना को एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है यूएस मार्केट में एंटर करने की, और जिसमें मैक्सिको एक बैक चैनल रूट बन जाता है। फिर इन्होंने लिखा है मोटिवेशन फॉर मैक्सिको टू जॉइन एग्रीमेंट्स। इसमें इन्होंने लिख रखा है कि सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम यूएसए एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, मतलब यही सब है सर इसमें कि इन्वेस्टमेंट एक्सेस टू टेक्नोलॉजी हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया यूएसए के थ्रू। मोर एम्प्लॉयमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, मतलब यही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट इन सब में। फिर इंसेंटिवाइज फॉर यूएसए, मतलब जो क्या कहते हैं यूएसए को ये चीप लेबर वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं, जिसकी वजह से उसकी कम्पिटिटिवनेस बढ़ती है यूएस प्रोडक्ट्स की। फिर इन्होंने लिख रखा है हाँ अगर वे लेबर प्रोवाइड करवा रहे हैं तो बेसिकली एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट कर रहे हैं, जिसकी वजह से जॉब बढ़ रही है वहाँ पे। ठीक है सर। फिर इन्होंने लिख रखा है कि प्रिवेंट करते हैं लीगल और इलीगल इमिग्रेशन को, क्योंकि करेंगे, क्योंकि जब जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो ऑब्वियसली ऐसा सब कुछ होने का नहीं, फिर माइग्रेशन वगैरह इलीगल। फिर इन्होंने लिख रखा है सर कि इंसेंटिवाइज फॉर कनाडा ए बिगर मार्केट फॉर प्रोडक्ट्स ऑफ कनाडा एंड ए प्लेस फॉर कैनेडियन इन्वेस्टमेंट। मतलब यही है कि सर एक बड़ी मार्केट है कनाडा के लिए, और एक एक कनाडियन इन्वेस्टमेंट, मतलब इन सब को ही प्रमोट करता है जो क्या कहते हैं ये एग्रीमेंट वगैरह है। फिर उन्होंने लिख रखा है नेचर ऑफ द एग्रीमेंट वन ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस ट्रेड एग्रीमेंट, मतलब सबसे अच्छा एक एम्बिशियस ट्रेड एग्रीमेंट है, जिसमें जी गुड्स होती है, सर्विस, इन्वेस्टमेंट, आईपीआर। फिर इन्होंने लिख रखा है सर कि लेबर लॉज और एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स वगैरह को, इनको भी इसको इंक्लूड करता है। फिर इन्होंने सर फिगर दे रखी है कि 1993 में इंट्रा रीजनल ट्रेड इतना हुआ था $290 बिलियन का डॉलर। फिर उसके बाद में ये और बढ़ गया, फिर ये 1.1 ट्रिलियन हो गया डॉलर इन 2017 में। फिर मैक्सिको ने भी वो करा रिसीविंग यूएसएफडीआई, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा था। 15 बिलियन की पहले नाफ्टा में थी, फिर जो बढ़ के फिर हो गई सर 100 बिलियन आफ्टर नाफ्टा एट प्रेजेंट। सर आगे नीचे करेंगे। हो गया, यही तो करना था। ठीक है सर।
ओके, थैंक यू सर, क्रिएचर। तो यूएसए के ग्रीवांस क्या है उसमें? Job loss in automobile sector to Mexico and Canada maintain protectionist regime in dairy sector. Actual scenario: NAFTA had created more number of jobs export sector of USA. It provided cheaper goods to US consumers. It has increased US's farm export corn to Mexico. It has increased competitiveness to US's automobile industries vis-a-vis Europe, Japan, and even China. Job loss was concentrated in few sectors. Benefits spread across sector. Job losses in USA has been for other reasons also, that is automation, and because of US government has not invested in skill development at par with Nordic countries. Nordic countries have not been adversely impacted by globalization. Switzerland has been the biggest winner of globalization. Impact on Mexico: mixed impact. More investment from both Canada and USA, more job in manufacturing sector, but negative impact on agriculture. US's exports have been heavily subsidized. It also led to regional disparity in Mexico. Northern belt benefited manufacturing. Southern belt suffered agrarian. Mexico's economy also became more vulnerable to global shocks since it is tied with US economy. It faced the brunt of recession of US economy. It was expected that NAFTA will bring increased wages. It didn't happen. NAFTA could not prevent illegal immigration to USA. There was no significant impact on poverty reduction. There was also job losses in Mexico, but not because of USA, rather because of China. Impact on Canada: no adverse impact. Canadian export to USA increased. Canada gained significantly in cross-border investment. Hence, Canada has been more interested in continuation of deal in present form. What has been US's demands? First, Mexico should increase wages. Accepted. Second, tightening the rules of origin requirement. Action against China. Accepted. Updating IPR norms and digital servicing norms. Accepted. China should reform its dairy sector. Accepted. Now US dairy sector will have greater access to Canada है मैंने China पढ़ा. Canada should reform its dairy sector. Accepted. Now USA dairy sector will have greater access to Canada. Fifth है new environmental rules. Accepted. What Canada gained? Canada could force USA to retain CH-19 and CH-20 कुछ है वो, dealing with dispute settlement mechanism. The advantage being that Canada can use the platform against USA if USA imposes high tariff, anti-dumping duties and countervailing duties. Biggest gain for USA. Canada and Mexico will have no freedom to conduct free trade agreement with China. The new agreement suggests that partner countries will have veto power over the free trade agreement conducted with non-market economy. Though China is a WTO member since 2001, China has not been given the status of market economy. What China will gain? If treated as a market economy as per WTO norms, it will weaken the ability of developed countries to impose sanctions against China. Another advantage for USA is New Deal also includes that tariff-free export to Mexico's automobile sector only when product utilizes 75% of parts manufactured in USA. The impact of New Deal on global economy. USA will impose similar terms and conditions for other trading partners. Right to be informed about trade deals and right to veto. This will contain China economically. However, there is a huge interdependence among countries with China. The slowdown of Chinese economy will ultimately slow down the global growth. Slowdown in global demand will adversely impact India also. ठीक है, तो ये वाला पार्ट कौन समराइज करेगा यहाँ से? व्हाट आर यूएसए ग्रीवांसेस से?
कोई भी कर दो जिसे हल्का फुल्का समझ आ गया हो, टूटा फूटा भी बताओ, चल जाएगा। कहीं अटकोगे तो कोई और हेल्प कर ही देगा। कोई भी यार, पाकीज़ा, पुट्टू पुट्टू, हकुना मटाटा, आशुतोष सर, उमेश सर, क्रेचर सर। आशुतोष सर करना चाहेंगे आप? हेलो गाइज, आवाज तो आ रही है ना मेरी? मैं ही कर देता हूँ। ठीक है, चलो मैं ही कर देता हूँ। व्हाट आर यूएस ग्रीवांसेस? तो उन्होंने पहले यूएसए के ग्रीवांसेस कहा है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में वो क्लेम ऐसे कर रहे थे कि मेक्सिको और कनाडा के चलते ऑटोमोबाइल सेक्टर में यूएसए के जॉब लॉस हुए थे, और जो कनाडा ने था वो डेयरी सेक्टर में भी उतना एडवांटेज नहीं दिया था यूएसए को जितना यूएसए डिमांड कर रहा था। पर एक्चुअल सिनेरियो नीचे लिखा है कि एक्चुअली में ये सिचुएशन थी कि मोर यूएसए में एक्सपोर्ट, यूएसए का एक्सपोर्ट बढ़ा था और यूएसए के कंज्यूमर्स को ही चीपेस्ट गुड मिलने लगे थे, और यूएसए के फार्म जो एक्सपर्ट्स है उसमें कॉर्न टू मैक्सिको है वो काफी बढ़ गए थे, और यूएसए की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की कॉम्पिटिटिवनेस भी बढ़ गई थी यूरोप, जापान और चाइना के कंपैरिजन में भी। और कुछ सेक्टर्स में जॉब लॉस हुआ भी होगा तो भी बेनिफिट जो था वो अक्रॉस था, तो जॉब लॉसेस ज्यादा कोई हुआ भी होगा तो भी ऑटोमेशन की वजह से था, क्योंकि जो स्किल डेवलपमेंट उतना किया नहीं यूएसए ने जितना नॉर्डिक कंट्रीज ने किया, और स्विट्जरलैंड सबसे बड़ा बेनिफिशियरी रहा है ग्लोबलाइजेशन का। फिर मेक्सिको पे क्या इम्पैक्ट हुआ, तो उनका मिक्स हुआ है उन पर इम्पैक्ट कि हाँ, कनाडा और यूएसए से उनको इन्वेस्टमेंट आया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जॉब आए, पर उनके एग्रीकल्चर पर निगेटिव इम्पैक्ट हुआ, क्योंकि यूएसए का जो एग्रीकल्चर है वो हेविली सब्सिडाइज्ड है, तो एग्रीकल्चरल उनके गुड्स ने यूएसए के उनको फ्लड कर दिया पूरे मार्केट्स को, और उनका पूरा एग्रीकल्चर मार्केट कोलैप्स हो गया। नॉर्दर्न बेल्ट को मैन्युफैक्चरिंग वगैरह मिला, पर उनका जो मैक्सिको का सदर्न बेल्ट था जो एग्रीकल्चर डोमिनेटेड था वो सफर कर गया पूरा। और यूएसए में लिंक्ड होने से, यूएसए पे मेक्सिको का इकोनॉमी ज्यादा लिंक होने से और डिपेंडेंट होने से जो अभी रिसेशन हुआ 2008 में उसमें भी मेक्सिको ने काफी सफर किया। और मेक्सिको ने एक्सपेक्ट किया था कि वेजेस वगैरह इंक्रीज होंगे, पर वैसा कुछ हुआ नहीं, और इमिग्रेशन कुछ रुका नहीं, और कुछ जॉब लॉसेस भी हुए यूएसए में, और क्योंकि वो चाइना की वजह से, क्योंकि चाइना ने भी फ्लड करा काफी उनके मार्केट्स को। फिर कनाडा पे क्या इम्पैक्ट हुआ, तो कनाडा पे कोई एडवर्स इम्पैक्ट हुआ ही नहीं, कोई भी। जो भी हुआ उनके एक्सपोर्ट्स बढ़े, कनाडा ने एक सिग्निफिकेंट बॉर्डर इन्वेस्टमेंट अचीव किया, और काफी वो मतलब ओपन बॉर्डर की वजह से ट्रेड भी काफी अच्छा कर पा रहे, इसलिए वो कंटिन्यू करना चाह रहे थे जो भी प्रेजेंट डील थी। पर यूएसए के कुछ कुछ डिमांड्स है उसमें, जैसे वो कह रहे थे कि मैक्सिको ने उनके जो डोमेस्टिक वेजेस है वो बढ़ाने चाहिए, क्योंकि सारा कंपनीज इंडस्ट्रीज वहां शिफ्ट कर रहा था चीप लेबर की वजह से, तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। फिर टाइटनिंग करने को कहा था उन्होंने चाइना के अगेंस्ट, उनके जो एक्सपोर्ट्स आ रहे हैं चाइना के यहाँ पे, उसको एक्सेप्ट कर लिया। फिर आईपीआर नॉर्म्स के लिए वो भी एक्सेप्ट हो गया। फिर कनाडा ने डेयरी सेक्टर को थोड़ा रिफॉर्म करना चाहिए, उसमें भी यूएसए को ज्यादा एक्सेस देना चाहिए कनाडा को, वो भी एक्सेप्ट कर लिया। और एनवायरमेंटल रूल्स लगाए जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री जनरली फॉलो नहीं करती है मैक्सिको जैसी, तो उस वजह से उनको थोड़ा बिजनेस में एडवांटेज मिल जाता है, तो वो भी एक्सेप्ट कर लिए गए। फिर कनाडा ने इससे क्या गेन किया कि कनाडा कुड फोर्स यूएसए टू रिटेन, ये कुछ तो पार्ट है, इसके बारे में कोई बता सकता है तो बता दो, कुछ तो चैप्टर 19 एंड 20 होगा वो डील में, बाकी पता नहीं मुझे। कनाडा कैन यूज प्लेटफॉर्म अगेंस्ट यूएसए इफ यूएसए इम्पोजेस हाई टेरिफ एंड हाई डंपिंग ड्यूटीज एंड काउंटर वेलिंग ड्यूटीज। ये प्लेटफॉर्म यूज करेगा, अगर कनाडा यूज करेगा अगर यूएसए कुछ ऐसे ड्यूटीज या टैरिफ्स लगाता है तो। और सबसे बड़ा यूएसए का गेन क्या रहा है कि कनाडा और मेक्सिको ये पूरे अब वैसे प्रोटेक्टोरेट ही बन गए यूएसए के, उनके पास कोई फ्रीडम ही बचा नहीं कोई अलग से ट्रेड एग्रीमेंट करने का चाइना के साथ, क्योंकि उन्होंने एक क्लॉज डाला है उसमें कि वेटो पावर होगा बाकी मेंबर कंट्रीज के पास, अगर नॉन मार्केट इकोनॉमी से डील करना है तुम्हें, तो एफटीए करना है तो उस वजह से यूएसए कभी चाइना के साथ एफटीए होने ही नहीं देगा।
और चाइना WTO मेंबर होने के बावजूद वो अभी मार्केट इकोनॉमी स्टेटस एक्सेस है नहीं उसको, इसलिए वो अभी भी मतलब रिस्ट्रिक्टेड इकोनॉमी ही है चाइना। तो उसमें अपना यूएसए अपना वेटो यूज कर सकता है नाफ्ता कंट्रीज के साथ। और एक एडवांटेज है कि हाँ एक सेकेंड, टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट टू मेक्सिको ऑटोमोबाइल सेक्टर ओनली व्हेन द प्रोडक्ट यूटिलाइज 75%। हाँ, तभी टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट्स होंगे मेक्सिको को जब 75% ऑफ द पार्ट जो है वो यूएसए में मैन्युफैक्चर्ड होंगे। मतलब वही डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट जो हमारा इंडिया का भी सोलर पैनल को लेके रहा है, वैसा ही उन्होंने यहाँ के 75% मेड इन यूएसए होना चाहिए, तभी आपको ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलेगा। और न्यू ग्लोबल इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट हुआ है, तो इसमें ये कहा है कि USA will impose similar terms and conditions for other trading partners। हाँ, USA बाकी भी ट्रेडिंग पार्टनर के साथ सिमिलर चीजें करना चाहेगा, जैसे वो वेटो वगैरह उसने उस केस में लिया है, वो बाकी भी उसके ट्रेडिंग पार्टनर के साथ लेने की एक्सपेक्ट करेगा, और वो चाइना को कंटेन करना चाहेगा इकोनॉमिकली। पर यूएसए ने ये समझना चाहिए, ऐसे इन्होंने कहा है कि चाइना को डुबाने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि अल्टीमेटली चाइना अगर स्लो डाउन होगा तो ग्लोबल ग्रोथ स्लो डाउन होगा, और डिमांड अगर एडवर्सली अफेक्ट होगा तो इंडिया को भी इम्पैक्ट होगा। ठीक है, तो ये नाफ्ता हो गया यहाँ से। अब हम नोट से देखते हैं कुछ अलग मिलता है तो। मैं पढ़ लूंगा सर इसको। हाँ, पढ़ लीजिए। हाँ, एम आई ऑडिबल? हाँ बिल्कुल। ओके, थोड़ा सा जूम कर लीजिए सर बस। ठीक है, तो इंट्रो में लिखा है कि नाफ्ता का फुल फॉर्म है नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इज एन एग्रीमेंट साइंड बाय कनाडा, मेक्सिको एंड यूएस, entered into force on 1st January 1994 in order to establish a trilateral trade bloc in North America। इसका दिस इज एन एग्जांपल ऑफ न्यू रीजनलिज्म, मतलब कि जो रीजनलिज्म ऐसा जो ट्रेडिंग ब्लॉक से ट्रेडिंग के ऊपर बेस्ड है, तो इसको बोलेंगे न्यू रीजनलिज्म। इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस थ्योरी एज गिवन बाय थॉमस फ्रीडमैन, जिन्होंने गोल्डन आर्चेस थ्योरी है, उसमें वो बोलते हैं ना कि पीपल वुड प्रेफर टू स्टैंड इन द लाइन फॉर मैकडोनल्ड्स देन इन द लाइन ऑफ वॉर। तो थॉमस फ्रीडमैन एंड रिचर्ड रोसेंक्रांत्ज जो है, इन्होंने दिया है इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस थ्योरी। हाँ, तो इसका स्कोप क्या है? इमीडिएट एलिमिनेशन ऑफ टैरिफ हो रहा है ऑन मोर देन वन हाफ ऑफ मेक्सिको एक्सपोर्ट टू यूएसए एंड मोर देन वन थर्ड ऑफ यूएसए एक्सपोर्ट टू मेक्सिको। NAFTA also sought to eliminate non-tariff trade barriers and to protect intellectual property rights on traded products, implement the labor and environmental safeguards। ठीक है, तो ये मतलब टैरिफ के बारे में बात कर रहा है, नॉन टैरिफ के बारे में बात कर रहा है, आईपीआर के बारे में बात कर रहा है, लेबर सेफगार्ड की बात हो रही है, एनवायरमेंटल सेफगार्ड की बातें हो रही है। ठीक है, तो ये सब डिस्कशन हो रहा है, स्कोप है इसका। अचीवमेंट्स क्या है देखो, कंबाइंड जीडीपी जो है ना इनका, ये बनाता है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, बनाता है इसको। मोर देन क्वाड्रिपलिंग ऑफ रीजनल ट्रेड। तो मतलब ये एग्रीमेंट के बाद में 4 गुना ट्रेड बढ़ चुका है, क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट्स बढ़े हैं। थोड़ा नीचे ले लीजिए सर। सत्यम सर, प्लीज स्क्रॉल डाउन अ बिट। ओके, फिर आगे है कि इसका अचीवमेंट्स क्या क्या देख रहे थे अपन। तो सक्सेसफुल है इन मेकिंग दीज कंट्रीज कॉम्पिटिटिव इन इंटरनेशनल मार्केट। ऑल कंट्रीज रिसीव्ड ए मॉडेस्ट पॉजिटिव इकोनॉमिक बेनिफिट एज मेजर्ड बाय जीडीपी। ठीक है, तो कॉम्पिटिशन बढ़ा है, पॉजिटिव इकोनॉमिक बेनिफिट मिला है सभी को जीडीपी के टर्म्स में भी। मैक्विलेडोरास मेक्सिकन असेंबली प्लांट्स है that take in imported components and produce goods for export have become the landmark of trade in Mexico। तो मतलब एक एरिया का नाम है असेंबली प्लांट्स वगैरह, है ना, मैक्विलोडोरास। These are the plants that move to this region from the United States
Income in the Maquiladora region has increased 15% since implementation of NAFTA in 1994. Mexico's agricultural exports have increased by 9.4% annually between 94 to 2001. ठीक है, तो आगे देखते हैं. 2015 study found that US welfare increased by 0.08% as a result of NAFTA tariff reductions, and that US intra-trade bloc trade increased by 41%. तो इसमें ये सब अचीवमेंट्स थे. कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ा है, पॉजिटिव इकोनॉमिक बेनिफिट हुआ है, मैक्विलेडोरास जो मेक्सिको के अंदर असेंबली प्लांट्स आए हैं, एग्रीकल्चरल आउटपुट बढ़ा है. ठीक है, यूएसए को फायदा है, दोनों को फायदा मिला है. इसमें लेकिन डिस्प्यूट्स क्या है, कंट्रोवर्सीज क्या है. एक डिस्प्यूट ये है कि इट हैज अफेक्टेड यूएसए वर्कर्स एंड देयर जॉब्स सिंस मेनी यूएस मैन्युफैक्चरर्स शिफ्टेड टू मेक्सिको. क्यों? क्योंकि वहां पे चीप लेबर है ना, ऑब्वियसली बात है. तो ट्रम्प कॉल्स फॉर रीनिगोशिएटिंग द एग्रीमेंट. इश्यूज ऑफ ट्रेड डेफिसिट है अमेरिका का विद कनाडा एंड मेक्सिको. तो यूएसए को ऐसा लग रहा है कि वहां पे घाटा हो रहा है उनको. तो 10 मिलियन इलीगल मैक्सिकन इमिग्रेंट्स यूएसए में जा रहे हैं, तो इसके वजह से ह्यूमन राइट्स इश्यू आ रहा है इलीगल इमिग्रेशन की वजह से. मेक्सिकन फार्मर्स आर नॉट एबल टू कॉम्पीट विद द चीप अमेरिकन एक्सपोर्ट्स. ये मेक्सिको के लिए इशू है. अमेरिका से जो कमर्शियल फार्मिंग वाला एक्सपोर्ट है ना, उसको कॉम्पीट नहीं कर पा रहे मेक्सिको वाले. तो निगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है एनवायरमेंट से. वैसे तो मेक्सिको में इतना रेगुलेशंस नहीं है फर्टिलाइजर के ऊपर वगैरह, तो फिर उसके वजह से इश्यू आ रहा है. मैक्विलोडोरा जो है वहां पे वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करा जा रहा है. अपन ने देखा था ना वहां पे क्यों जा रहे हैं मैन्युफैक्चरर्स, बिकॉज चीप लेबर है वहां पे. तो यहाँ पे एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है. तो ये भी एक ह्यूमन राइट्स का इशू होता है. चैप्टर 11 के अंदर इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट ऑब्लिगेशन दिया है, कंटेन इन चैप्टर 11 ऑफ नाफ्टा. इट अलाउज कॉर्पोरेशंस एंड इंडिविजुअल्स टू sue the state for compensation when actions taken by those governments violate international law. This is criticized by the groups in USA, Mexico, and Canada for a variety of reasons, including not taking into account important social and environmental considerations. तो ये सब डिस्प्यूट्स थे. एक बार समराइज करता हूँ मैं. जॉब लॉसेस का हो रहा है यूएसए के अंदर, ट्रेड डेफिसिट का इशू है इसके अंदर, इलीगल इमिग्रेशन एक इशू है यूएसए का, मेक्सिकन फार्मर्स का इशू है कि कंपटीशन नहीं कर पा रहे हैं, एनवायरमेंटल इश्यूज है यूएस कनाडा के, मैक्विलोडोरा वर्कर्स एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, ह्यूमन राइट्स के इशू आते हैं. फिर इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट ऑब्लिगेशन जो है वो भी थोड़ा डिबेटेबल है. आगे देखते हैं अपन फ्यूचर ऑफ नाफ्टा क्या है, यूएसए डिमांड्स क्या क्या है. तो अपडेट नाफ्टा विथ हाई स्टैंडर्ड्स बोला है. डिजिटल ट्रेड, आईपीआर, साइबर सिक्योरिटी से अपडेट करना है. डिस्करेज करना है आउटसोर्सिंग. रूल्स ऑफ ओरिजिन को टाइटन करना है. ये कंटेक्स्ट में ऑफ चाइना है, ये चाइना से मेक्सिको में आते हैं और मेक्सिको से यूएसए में आता है. तो अगर चाइना को बैन भी करा है तो भी फर्क नहीं पड़ता है, मैक्सिकन मेड इन मेक्सिको करके भेजते हैं वहां पे. ठीक है, तो रूल्स ऑफ ओरिजिन, आउटसोर्सिंग एंड डिजिटल ट्रेड, आईपीआर वगैरह. हाउएवर विड्रॉल मे नॉट बी पॉसिबल. कांग्रेशनल प्रेशर है, इकोनॉमिकल पेनफुल होगा, डिसरप्ट करेंगे बिजनेस को, प्राइस बढ़ जाएंगे कंज्यूमर्स के लिए. तो ये सिर्फ चाइना के अगेंस्ट वॉर का गिमिक ऐसा बोल रहे थे. राइजिंग प्रोटेक्शनिज्म अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी हो रहा है. तो मोस्ट लाइकली लीस्ट डिसरप्टिव एक्शन फॉर थ्री कंट्रीज विल बी टू मीट एट द टेबल ऑफ डिप्लोमेसी. वुड्रो विल्सन विजन इज इंपॉर्टेंट इन दिस रिगार्ड. थोड़ा नीचे ले लेंगे सर. हाँ, एक खत्म हो गया इसमें. इसमें वैसे ना यूएसएमसीए साइन हो चुका है. उसके बारे में दिया था कि दूसरे डॉक्यूमेंट में. सत्यम सर, आशुतोष. हाँ हाँ, यूएसएमसीए करके न्यू एग्रीमेंट साइन हुआ है ना, उसके बारे में. यूएस हाँ, कुछ आइडिया नहीं यार मुझे एग्जैक्टली उस पर. जो नाफ्ता है ना बेसिकली वो एबॉलिश हो हाँ गया है, और उसके जगह पे हाँ यूएसएमसीए करके एग्रीमेंट आया है. हाँ 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 उसके हाँ, बारे में कुछ पढ़ा क्या आप लोगों ने दूसरे नोट्स में? ज्यादा कोई डिटेल में नहीं पता भाई. एक काम करो, गूगल सर्च कर लो यूपीएससी यूएसएमसीए, ऐसा लिख दो, शायद आ जाना चाहिए. एक सेकेंड. हाँ, इसी में कर दो, नया टैब बना दो ब्राउजर में, दिख हाँ जाएगा नया सबको आई थिंक. टैब. एक सेकेंड ना.
हाँ हाँ, बस ये लिखना है कि यूपीएससी यूएसएमसीए, आई थिंक कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा, दृष्टिका वगैरह। हाँ, एक बार कोई पढ़ लो इसको, थोड़ा सा, पूरा पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट देख लो एक बार बस। Okay, am I audible? हाँ हाँ, यस। Okay, then so we are going to see the United States-Mexico-Canada Agreement, USMCA, formerly known as NAFTA. Okay, then context. Basically, it was recently passed and it is just modified to NAFTA, and it is known as NAFTA 2.0. Here, basically, they changed the country of uh, country of origin rules. So, automobiles must have 75% of their components manufactured in Mexico, US, or Canada to qualify the zero tariffs. So basically, here the concern is of China, because what China was doing, they were manufacturing, they were exporting their products through Mexico to USA. Then labor provisions. 40 to 45% of automobile parts have to be made by workers who earn at least $16 an hour by 2023. Mexico has also agreed to pass laws giving workers the right to union representation, extend labor protections to migrant workers, protect women from discrimination. The countries can also sanction one another for labor violations. Basically, here the US concern was they just worried about the human rights of workers in Mexico, and it actually pushed the cost of manufacturing higher. So it made the US products more competitive with Mexico. स्क्रॉल अप करेंगे क्या? सत्यम सर स्क्रॉल करेंगे. हेलो. Okay, US farmers get more access to Canadian dairy market. US got Canada to open up dairy market to US farmers, which was a big issue for Trump. Intellectual property and digital trade. The deal extends the terms of copyright to 70 years beyond the life of the author from previously 50 years. It also extends the period that pharmaceutical drug can be protected from generic competition. So this was also issue for India in WTO regarding the generic medicines. It also includes new provisions to deal with digital economy, including prohibiting duties on things like music and e-books, and protections for internet companies, so they are not liable for content their users produce. So common sunset clause. The agreement puts in a 16-year sunset clause, meaning the terms of agreement expires or sunset after set period of time. The deal is also subject to review every 6 years. ठीक है. नीचे वाला तो क्या ही है. थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे, कुछ है तो देख लो. इसके अलावा पॉइंट्स तो अपने पढ़ लिया ना, कंट्रोवर्शियल वाला भी पढ़ लिया है. ठीक है. हाँ, तो आई थिंक यार नाफ्ता सिलेबस में स्पेसिफिकली मेंशन्ड है ना, तो आई बिलीव ये जो 5-6 पॉइंट दिए हैं हमें ये रटने होंगे अच्छे से. क्वेश्चन आए नहीं आए पता नहीं, बट ये सिलेबस में मेंशन्ड है. वी शुड नो ऑल ऑफ दिस प्रॉपरली. हाँ, सही बात है जी. ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट तक लिए. समराइज कर दूं तो बेसिकली ना, देखिए कि अगर यूएसएमसी आ जाए तो बस 6-7 पॉइंट क्या लिखने. कंट्री ऑफ ओरिजिन रूल्स, चाइना को याद करके रखना. मेक्सिको से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मेक्सिको के रूट से, उससे अवॉइड करना है. 75%. जो कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाना है तो क्या करेंगे, जो मेक्सिको में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है
ठीक है, वो भी बढ़ा दिया, मतलब लेबर के लिए इतना बेसिक वेजेस देना ही पड़ेगा उनको। ठीक है, देन डेयरी के लिए, डेयरी का इशू है। उसके बाद और क्या था, डिजिटल इकोनॉमी का था कि 70 ईयर्स के लिए था, और पीरियोडिक रिव्यू होगा 6 ईयर का। और किसको याद है तो बता दो। लेबर प्रोविजन करा है, 40 to 45% का कंडीशन लगाया है। $16 पर आवर 2023 तो करा है। कैनेडियन मार्केट ओपन कर दिया यूएस डेयरी के लिए। आईपीआर का कुछ चीजें स्ट्रिक्ट कर दिए, 70 ईयर तो कर दिया ना। डिजिटल ट्रेड के बारे में कुछ करा है उन्होंने, मतलब डिजिटल इकोनॉमी के जो सेफगार्ड्स है वो लगाए हैं आईपीआर के। ठीक है, आगे चल सकते हैं क्या आशुतोष सर? हाँ हाँ, तो अगला एग्रीमेंट खोले, हो गया है नाफ्ता, हाँ हाँ हो गए। एपिक, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। एपिक का इंडिया मेंबर नहीं है, याद रखना। उसमें कौन से कंट्रीज है एक बार देख लो। रशिया, चाइना, मंगोलिया भी नहीं है, जापान है, ताइवान दिख रहा है। जापान, साउथ कोरिया, एशियन कंट्रीज सारी है। नहीं, इधर ये नहीं है शायद, ये वाला कौन सा है शायद, वियतनाम होगा ना, वियतनाम है कॉर्नर क्या? वाला। हाँ वियतनाम है, ये वियतनाम नहीं है। थाईलैंड नीचे वाला शायद है वो। थाईलैंड है, हाँ यहाँ लिखा है, इंडोनेशिया थाईलैंड है। हाँ, लाओस कंबोडिया लिखा नहीं है, तो है क्या? ये नहीं 1989 होगा। वाला लिखा है, क्या पता है यहाँ पे। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड है, ये बड़ी बड़ी कंट्रीज। कनाडा, मेक्सिको दिख मेक्सिको, रहा है, कनाडा है, यूएसए है। और बीच वाली नीचे कंट्रीज नहीं देखो, है। ये कौन, ये चिली है, ये कौन सा है पता नहीं। पैराग्वे है तो क्या? बोलीविया लग रहा है यार वो। ये बोलीविया है क्या? नॉट पेरू श्योर। पेरू पेरू, हाँ पेरू। पेरू है ये। ठीक। ठीक है, एक बार पढ़ लीजिए सर आगे। हाँ, three unique features of APEC. Open regionalism. EU is an example of closed regionalism. Closed regionalism means highly institutionalized framework, tight norms. APEC has minimum institutional structure. Soft regionalism, bottom-up approach. Countries determine voluntary targets. Massive participation by private sector. Another feature is that members are known as member countries rather than state parties. China as well as Taiwan and Hong Kong are members of economic APEC. Objectives of APEC: to create free trade area in Asia Pacific, which means seamless trade in goods and services through harmonization of regulations, trade facilitation by cutting red tapeism, develop common standards and reduce the। सॉरी टू इंटरप्ट सत्यम सर, मैं एक बार हाँ करूँ क्या थोड़ा सा? हाँ, बोलिए बोलिए, कोई इशू नहीं है। ओके, सो सबसे पहले जो हमने 3 ऑब्जेक्टिव्स पढ़े उस पे फोकस करते हैं। जो ईयू के साथ इसका कंट्रास्ट शो करने की कोशिश किया, सबसे पहले स्टेटमेंट की ओपन रीजनलिज्म है। मतलब ये आप ईयू को देखेंगे तो एक कंसंट्रेटेड रीजन है यूरोप में, वहां पर ईयू फंक्शन करता है। बट जब आप इपेक को देखेंगे तो ये एक ओपन रीजनलिज्म का एरिया शो करेगा। इसका जो ग्राफ है ये काफी ज्यादा दूर दूर की कंट्रीज को भी कवर करता है। ठीक, एपेक हैज मिनिमम इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर। ईयू में ना एक खासियत है कि वो कुछ भी ट्रेड करते हैं ना उसका इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फॉर्म है, मतलब वो कौन सी करेंसी यूज करेंगे, यूरोपियन पार्लियामेंट रूल्स सब कुछ है। यहाँ पर क्या बता रहे हैं? ओपन रीजनलिज्म। दूसरा बता रहे हैं सॉफ्ट रीजनलिज्म, बॉटम अप अप्रोच, कंट्रीज डिटरमाइन वॉलंटरी टारगेट्स। यानी कि अब देखो, ईयू में ऐड होना एक तरीके का इजी प्रोसेस है और उससे ज्यादा टफ प्रोसेस है ईयू से निकलना। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो ब्रेग्जिट हुआ था उसमें आप भी देखो कितना टाइम लग गया। यू एक बहुत कॉम्प्लेक्स तरीका है जहां पर रीजनलिज्म काफी हार्ड और रिजिड है। यहाँ पर क्या बता रहे हैं? बॉटम अप अप्रोच। वो क्या है? टॉप डाउन अप्रोच लगाएगा। यू में टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करेंगे।
massive participation with private sector. Another unique factor is that the members are known as the member economies rather than parties. मतलब इसमें आप देखिए ना, इसका जो रीजन है वो भी काफी हद तक कवर करता है, ओपन ही एक तरीके से पैसिफिक के इस तरफ उस तरफ की सारी कंट्रीज को इंक्लूड करता है। अब जो ऑब्जेक्टिव ऑफ एपेक है वो यार वो सबका ही ऑब्जेक्टिव सारे एफटीए का वही रहता है, रेड टेपिज्म को कम करेंगे, डेवलप कॉमन स्टैंडर्ड्स फॉर रिड्यूस ट्रांजैक्शन, एम्स टू डेवलप मोर एफिशिएंट एरिया इन टर्म्स ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ये सभी का मतलब मोर और लेस सबका सेम ही रहता है, सारे के सारे एफटीएस का या जो भी ऐसा रीजनल ऑर्गेनाइज बनता है ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए, उन सभी का। इट वॉज प्रपोज्ड बाय, थोड़ा सा हिस्ट्री बताएंगे, ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर बॉब हॉक। At present, there are 21 countries. In 1989, Australia and other 11 countries formed the body. China joined. ये फिर वही है, सीक्वेंस बता रहे हैं, as such इतना ज़्यादा important नहीं है। उसके बाद फिर फीचर्स, इनिशियली इट वाज जस्ट फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बट नाउ इट इज टेकिंग अदर ऑब्जेक्टिव्स एज वेल, लाइक नॉन कन्वेंशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स, बोगर गोल्स। In 1994, member countries committed to create a free trade area in the Asia Pacific. Developed countries will reach the target of by 2010 and developing countries by 2020. Huge significance in case of collapse of WTO. Okay. How is this in case of collapse of WTO? Okay, मतलब 1994 में इन्होंने WTO के पैरेलल एक गोल्स जैसा बॉडी जैसा तो नहीं था, एक गोल्स जैसा बनाया था, बोगोर गोल्स। I was not aware of this fact, although APEC has 3 pillars. First वो is तो 1995 में बना ना। या सर वो 1995 में बना, इन्होंने वो बात पहले से चल रही थी, उरुग्वे राउंड बहुत पहले से चल रहे थे। तो trade and investment, business facilitation, economic and technical cooperation represent 60% of the global GDP and 40% of global population. Quite large chunk. It has been playing constructive role since there has been deadlock in WTO. Alright, अभी तो WTO अक्टूबर क्रांति जैसे बहुत सारी दिक्कतों से जूझ रहा है, उनकी एफिलिएट बॉडी अच्छे से फंक्शन नहीं करती है, तो एक तरीके की पैरेलल बॉडी समझ लीजिए, इन कंस्ट्रक्टिव रोल सिंस डेडलॉक इन WTO. Sorry for this. Can you scroll down, sir? Am I audible? Yeah, thank you, sir. Okay, prospects at present. For the first time, no communique was issued, PNG. The US president did not participate. US representative criticized China for protectionist policy, warned smaller countries against joining BRI. Geopolitics dominated over geoeconomics. मतलब जो एपेक है वहां पर भी अब जियोपॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से ये अपना शाइन जो है लूज कर रहा है। कैसे शाइन लूज कर रहा है? जब यूएसए जैसा एक इम्पोर्टेंट कंट्री, अगर आप जिस ग्रुप में है वो उसी ग्रुप को यूएसए बोले हम छोड़ रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी शाइन तो लूज होनी ही है। दूसरा, यूएसए उनके जो प्रॉपर फंक्शनिंग है उसमें भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये बोल के कि दूसरी जगह मतलब ट्रेड की बात ट्रेड में की जाए, लेकिन नहीं, पॉलिटिक्स को भी घुसाना है कि आप बीआरआई को इंक्लूड मत कीजिए। तो एक तरीके से उनकी सोवरेनिटी को भी वो बोल रहा है, मतलब हम तो ऐसे न्यूट्रल स्टांस में देखा जाए तो उनकी सोवरेनिटी के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। Geopolitics dominated over geoeconomics. Now the future prospects include, it depends on US-China relation. Hope is on G20 communique. Okay, it has been suggested that APEC countries should seriously consider India's membership in APEC as a balancer of China and as a countervailing force against China. Okay, if so, why India has not been included so far? Countries think that India is not enough liberalized. India will have to reform the labor laws. India has to improve in ease of doing business. India has to improve infrastructure, needs skill development. इन शॉर्ट इंडिया को क्रिटिसाइज किया है ये बोल के कि आपके यहाँ जो लिबरलाइज मतलब आप जो है मार्केट के ज़्यादा एक्सेस नहीं देते हैं, अगर हम दे देंगे तो चाइना पूरा मार्केट फ्लड कर देगा, बट इन्हें नहीं समझा सकते। वाई इंडिया इज इम्पोर्टेंट फॉर एपेक? इन एज ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन, इंडिया इज अ स्वीट स्पॉट। इंडिया इज फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी एंड अमंग द एमर्जिंग इकोनॉमीज। मतलब एक तरीके से देखा जाए ना तो हर जगह ना आपको बायसनेस दिखती है, मुझे तो दिखती है कि वो आपके मार्केट को यूज करना चाह रहे हैं, बट एट द सेम टाइम चाहे वो यूएस के साथ हो या चाइना के साथ ट्रेड हो, वो हमारे प्रोडक्ट्स को ज्यादा पेनिट्रेशन नहीं देते। ऐसा कई जगह होता है, ऑल्दो हम भी कोई दूध के दूल्हे नहीं है, हमने भी काफी टैक्स लगाया है बहुत जगह, बट ये होता है जैसा इसमें भी लिखा है। इंडिया को एज अ मार्केट की तरह देखते हैं ये लोग, इसीलिए इंडिया इज नाउ इमर्जिंग एज अ नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी। India has become the fourth country. India has become the fourth country in Asia registered for patents. ऑलराइट, एपेक कंट्रीज ये शायद अपडेटेड नहीं है ये डेटा, वो पेटेंट्स वाला बाद में अपडेट कर लीजिएगा। एपेक कंट्रीज कैन टेक एडवांटेज ऑफ आईटी सेक्टर, या दे कैन टेक एडवांटेज ऑफ इंडियाज इकोसिस्टम इन द आईटी सेक्टर। बीपीओ सर्विसेज का भी यूज किया जा सकता है, बट उसमें इंडिया को एडवांटेज होगा क्योंकि इंडिया बीपीओ सर्विसेज में टॉप पे आता है। India has started implementing trade facilitation agreement with WTO. India is cutting red tapeism by bringing e-governance. India has introduced GST. India's ranking in ease of doing business has been improving. Although जो main reports
एक्सपोर्ट थी जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाली वो खुद बंद हो चुकी है, बट यू कैन कोट इट लास्ट ईयर का डेटा लेकर। एट प्रेजेंट इंडिया हैज स्टेबल गवर्नमेंट विच ब्रिंग सर्टिनिटी इन टू द पॉलिटिक्स। या ये हमने मृणाल सर में भी पढ़ा है, इकोनॉमिक पॉलिसी अनसर्टिनिटी वाला कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर आ सकता है। ये अभी फिलहाल जो गवर्नमेंट है वो स्टेबल है, ऐसा भी नहीं कि कोएलिशन गवर्नमेंट है, तो जो भी ट्रेड करेगा उस ट्रेड में भी सर्टिनिटी रहेगी कि कल को सरकार रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स, अभी तो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स भी हट गया है, तो इसमें भी एक डाल सकते हैं कि इकोनॉमिक पॉलिसी अनसर्टेनिटी को मिनिमाइज किया जा रहा है। What will be the advantage for India? There is fear of collapse of WTO. RCEP has not come into existence. मतलब ये शायद अपडेटेड नहीं है, तो fear of collapse of WTO in the sense कि वो अक्टूबर क्रंच की वजह से और कई सारे पॉलिटिसाइजेशन की वजह से चल नहीं रहा, और दूसरा RCEP में इंडिया नहीं आया है, तीसरा the so far FTA is only with ASEAN। ये थोड़ा फैक्चुअली इनकरेक्ट है आई गेस, इंडिया का FTA कहीं और भी है, बट सर ये जो मतलब पूरा इशू है वो इसने लिखा आरसीएफ हैज नॉट कम इनटू एग्जिस्टेंस। तो ये तो तब की बात है जब आरसीएफ का मतलब उन्होंने बताया था कि ये मतलब भी नहीं आया। या आरसेप काफी टाइम से डिस्कस हो रहा है। आरसेप ऑल्दो इंडिया का आप थोड़ा सा अगर पहले से फॉलो करते तो सभी को एक्चुअली आपकी ना वॉइस ब्रेक हो जा रही है शायद, इसलिए मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप कुछ कहना चाह रहे हैं। तो मतलब कर लिया तो कोई उमेश सर, आई वुड रिकमेंड यू टू लीव एंड ज्वाइन अगेन, क्योंकि ना आवाज कट कट के आ रही है, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा आप क्या कहना चाह रहे हैं। एम आई द ओनली वन फेसिंग दिस प्रॉब्लम, और किसी और को भी हो रहा है उमेश सर की आवाज के साथ? हाँ, उनकी आवाज ब्रेक हो रही है काफी। ऑलराइट, एज आई सेड आई वुड रिकमेंड यू कि आप लेफ्ट करके वापस ज्वाइन हो। वी शैल कंटिन्यू विद दिस। सो फार इंडिया हैज एफटीए विद ओनली विद आसियान, बट आई गेस दूसरों के साथ भी है। इंडिया शुड एक्टिवली लॉबी फॉर इट्स मेंबरशिप इन एपेक, अदरवाइज इट विल बी लेफ्ट आउट। दिस हैज बीन द फियर ऑफ इंडिया इन एवरी एफटीए, चाहे वो आरसेप हो, चाहे कोई सा भी एफटीए हो जिसमें बात हो ना, सब ये बोलते हैं इंडिया वुड बी लेफ्ट आउट, इंडिया वुड बी लेफ्ट आउट, बट पीपल मिस ऑन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स कि इंडिया ऑलरेडी एक मार्केट बेस्ड इकोनॉमी है। कुछ कंट्रीज जो होती है वो मार्केट बेस्ड इकोनॉमी होती है, जैसे चाइना, ये जो भी गुड्स प्रोड्यूस करेंगे वहां पर एक मार्केट है। अब जैसे ईयू या जापान, वो इतने छोटे मार्केट्स है, सैचुरेटेड मार्केट्स है यार, वहाँ वो लोग अगर वर्ल्ड की टॉप क्लास प्रोडक्शन भी करेंगे ना, तो भी एक सैचुरेशन लेवल के ऊपर उनका ना ग्रोथ होगा, ना उनका इनकम डेवलपमेंट होगा, ना उनका कोई भी डेवलपमेंट नहीं होगा। वो सैचुरेटेड मार्केट है। इंडिया इज अनसैचुरेटेड मार्केट, अफ्रीका इज ऑल्सो अनसैचुरेटेड मार्केट। ऑल्दो ये फियर सब लोग जो लिखते हैं हम भी लिखेंगे कि अदरवाइज इंडिया विल बी लेफ्ट आउट। What are the biggest advantage in APEC? APEC model is soft regionalism and there is low risk venture. Soft regionalism मैंने स्टार्टिंग में बताया था, फिर वो बॉटम अप अप्रोच भी देते हैं। जैसे आरसेप में ना एक मैकेनिज्म था, रैचेट मैकेनिज्म, शायद मैं प्रोनाउंस ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ, रैचेट या रैचेट मैकेनिज्म। उसमें इंडिया बोल रहा था कि अगर आप लोगों के यहाँ से ज़्यादा गुड़ जाए तो हम एक सर्किट ब्रेकर की तरह रोक दें, लेकिन वो मिला नहीं था। तो वो क्या था, वो बॉटम अप अप्रोच नहीं था, वो टॉप डाउन अप्रोच था कि सारे लोग के लिए एक जैसा। चाहे डेयरी इंडस्ट्री में न्यूजीलैंड आपकी बैंड बजा दे, लेकिन आप रोक नहीं सकते उनके इम्पोर्ट्स को। तो वो बताता है कि वो जो है वो टॉप डाउन अप्रोच है। यहाँ पर हम बता रहे हैं कि ये बॉटम्स अप अप्रोच है। तो इंडिया को इसका फायदा मिल सकता था बॉटम्स अप अप्रोच का, और इट इज अ लो रिस्क वेंचर। व्हाट आर प्रोस्पेक्ट्स? पुअर प्रोस्पेक्ट्स। APEC countries will expect India to change. Why poor prospects? Reluctance of Indian bureaucracy to change. तो सभी कहते हैं डिसाइसिव पॉलिटिक्स इन इंडिया। एपेक कंट्रीज वांट टू लिबरलाइज एग्रीकल्चरल सेक्टर, जिसमें इंडिया काफी ज्यादा रिलेक्टेंट है, और ये सही भी है एक तरीके से, क्योंकि इंडियन एग्रीकल्चर मार्केट, इंडियन एग्रीकल्चर जो है वो है तो बहुत पुराना है 1960-70 के टाइम, बट वो एक नासेंट स्टेज पर है, जिसको अगर सपोर्ट सिस्टम ना मिले ना गवर्नमेंट का, तो वो क्रम्बल हो जाएगा। तो इसीलिए हम तो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर WTO में देख लो, इंडिया ने कितना लॉबी किया, तब जाके इंडिया को इतना वो मिला है एक्सटेंशन। आज भी जब भी कोई भी WTO, अभी WTO की मीटिंग्स ठीक से होती नहीं है, शायद 2019 में नहीं हुई, और 2021 वाली अभी होनी थी नवंबर में, अब वो भी नहीं हुई है। वो तो चलो कोविड की वजह से। तो ये क्या बता रहा है, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर ऑल्दो सेटल्ड है, बट एग्रीकल्चर एज अ सेक्टर जो है वो सेटल्ड नहीं हो रहा है। वो गेम्स, सॉरी, वो बॉक्सेस वाला इशू भी अभी भी चल रहा है। डिसाइसिव पॉलिटिक्स इन इंडिया। APEC कंट्रीज वांट टू लिबरलाइज, उसके इंडिया इज fearful बिकॉज इट ऑलरेडी हैज अ ह्यूज ट्रेड डेफिसिट। ये स्टेटमेंट एग्जैक्टली चाइना के साथ ही फिट करती है, और आसियान के साथ भी है, मगर उतना ट्रेड डेफिसिट नहीं है। India should do what India should do, not being not no point being protectionist, try to be competitive. What is the ultimate significance? Joining APEC is a part of India's grand initiative of Act East policy। ये बहुत बढ़िया, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को इंडिया की इकोनॉमिक पॉलिसी इंटीग्रेट कर दिया इन्होंने।
जहाँ पर उन्होंने बताया कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी को भी एक अलग इम्पेटस मिलेगा, ताकि हम क्या और ज़्यादा, जितने ज़्यादा आप वेज में दूसरी कंट्रीज के साथ इंटरेक्ट करोगे, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी हो चाहे वो जियो पॉलिटिक्स हो, उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। इंडिया विल बिकम सिग्निफिकेंट प्लेयर इन द रीजन, वो तो पहले से ही है, बट हाँ सिग्निफिकेंस बढ़ जाएगी इन द सेंस इकोनॉमिक रिलेशन की वजह से। और है नीचे, और है क्या नीचे? तो डज एनीवन वांट्स टू ऐड समथिंग या फिर रेक्टिफाई माय मिस्टेक्स या फिर ऐसा कुछ? बढ़िया था सर। उमेश सर आप कुछ कह रहे थे, बट अब आवाज आ रही है आपकी, आप कुछ बोलिए, तो बोलना है तो बोलिए। अच्छा सर, मैं एक्चुअली कहता हूँ कि जब एपेक तब की बात है जब यहाँ एक सेकंड पॉइंट लिखा हुआ था सर कि व्हाट विल बी एडवांटेज फॉर इंडिया। इस पॉइंट में लिखा हुआ था आरसीईपी हैज नॉट केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो वो तब की बात है जब हमने आरसीईपी में ही मतलब मेंबरशिप के लिए अपने विड्रॉ कर ली, तो फिर एपेक के लिए तो मेंबरशिप की बात ही नहीं आती। हाँ हो सकता है दिस माइट नॉट हैव बीन अपडेटेड, वेबसाइट माइट नॉट हैव बीन अपडेटेड, इसलिए कुछ चीजें लगाइए। राइट गाइस, किसी और को कुछ ऐड करना है? सत्यम सर, दृश्यम सर, क्रीचर? गाइस मुझे एक्चुअली अभी लीव करना पड़ेगा, तो आप लोग कंटिन्यू करो। तो कोई और स्क्रीन शेयर करेगा क्या? ये वाला खत्म हो गया क्या? हाँ सर, नाफ्ता खत्म होगा। उसमें से कर लिया नोट्स में से एक बार? मैं दूसरे वाले नोट्स हैं उसमें से मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, तो सब जाएंगे। हाँ ठीक है, ओके, थैंक यू गाइस। सर नाफ्ता के बाद से फिर तो ये कंटेम्प्रेरी ग्लोबल इश्यूज आ गए सर। नहीं, वो अलग है सर, वो एक बार देख लीजिए, वो अलग है। थोड़ा ऊपर ले लीजिए उसमें, हाँ थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर लीजिए। नाफ्ता हो गया, सार्क है, एपेक है ना ऊपर। हाँ, इसमें ज्यादा कुछ होगा नहीं। अच्छा, कुछ नहीं लिखा है, मतलब है ही नहीं कुछ। ठीक है, नो इश्यूज। फिर अपने को सार्क एंड आसियान करना बाकी है, ये कल कर सकते हैं फिर अपन, है ना? ऑलरेडी हो गया 1 घंटा पूरा, 50 मिनट हो गए। अभी कितना बच रहा है अपना? आसियान, सार्क एंड बिम्स्टेक ना, कल कर लेंगे बाकी कंटिन्यू। फिर करना है तो आप लोग आसियान ऑलरेडी काफी लंबा है और इलेबोरेट है, और उसमें काफी सारे डायनामिक्स चेंज भी हुए हैं आफ्टर म्यांमार coup। तो अगर अच्छे से क्वालिटी डिस्कशन करेंगे तो आई गेस टाइम तो लगेगा। एंड तो कल कर लेंगे सर इसको ना, इम्पोर्टेंट है तीनों भी, आसियान, सार्क एंड तीनों भी इम्पोर्टेंट है। कल अच्छे से कर ले जिसको डीप से। हाँ, ऑल द इम्पोर्टेंट जिसको वो तो कभी भी पूछ देते सर, नाफ्ता पूछ चुके हैं, साफ्ता पूछ चुके हैं, तो इम्पोर्टेंट तो मैं क्या, सभी इम्पोर्टेंट लगता है मुझे तो इसमें, इस टॉपिक में। जी जी ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लूँ क्या अभी? Okay, thank you very much everyone who participated, and for those who are watching on YouTube, please like, share and subscribe to our channel.